So, a very good evening to all of you. Now see, मैं last वाली जो problem थी कि we are having a file, text file that has some text written into it already. So what we need to do, we need to write a program which will read the content of that text file and will display how many vowels are present in that text file. So let us first see ki what we have in our file. Okay, so I am just showing you I have a file here in E drive. Okay, in E drive I have this file test2. I think it will be visible to all of you. This test file is there. I will show you the content of this test file also. This test2, suppose, and you can. I am showing you the contents, whatever is written here. So I have typed 3 lines here. This is the test file. You are very intelligent, and the sun rises in the east. I am closing this file now, and will move to okay. Now here this is our pie chart screen, and we will start writing a program. So I am just opening a new file. I am opening a new file. New, and this is a Python file. I am giving it a name, read vowels. Okay, this is the name of the file. So what thing we have to do at first? आप में से कोई बताइए कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? Anybody? Speak up. Read the file. Read the file. उसके लिए क्या statement होगा ये बताओ. First of all, what we do? We need to open that file. Okay. तो open file करने के लिए जो statement है, आप में से कुछ बताइए. What statement we should write for opening a file for reading? Tell me. Yes, anybody? Which command is used? Firstly, open command is used. Firstly, we have to create a variable. Then we have to use open command. Okay. And there we have to write the name of, write the address where our file is stored. PC. Okay, fine. See, I am creating an object and will associate this object with the file which I am going to open with this open statement. And since the file is in E drive, and the name of the file is test2, test2.txt, and which mode we should open it? R, read mode. Okay, R. So now this line will ensure the file test2.txt to be opened in
रीड मोड। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है कि इस फाइल में जो कुछ भी लिखा है, वट एवर इज रिटन, हमें उसे रीड करने के लिए एक स्टेटमेंट चाहिए। तो हमारे पास रीड करने के लिए जो स्टेटमेंट्स हैं विच वी डिस्कस्ड, वन वाज रीड, वन वाज रीड लाइन एंड वन वाज रीड लाइन्स। So here I am using only read statement, and whatever will be read from that file will be in the form of a string, and that string will be stored, say, in this variable s. So s equals to f dot read, और ये मेरा हो गया। तो what this read function is going to do कि ये सारा टेक्स्ट रीड करेगा और रीड करने के बाद उस टेक्स्ट को एक स्ट्रिंग के रूप में एस में स्टोर कर देगा। अब हमें ये चेक करना है कि इस एस में जो भी रीड होके आ गया है वो करेक्टर बाई करेक्टर हमें चेक करना है कि उनमें से कितने करेक्टर ऐसे हैं जो वॉवेल्स हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है वॉवेल 5 वॉवेल्स आर देयर, ए ई आई ओ यू। ओके, तो आई डिक्लेयर्ड 2 वेरिएबल्स, एक काउंट इक्वल्स टू 0, so each time when we will find the character which is a vowel, this count is going to be increased by 1. Now another, I am using this L as a list, और इसमें मैंने डिफाइन कर दिया ये A, E, A, E, I, O and U। तो मैंने ये लिस्ट जो बनाई है A, E, I, O, U, दिस लिस्ट कंटेन्स वॉवेल्स। तो अगर इन लिस्ट में से लिस्ट के जो एलिमेंट हैं A, E, I, O, U, अगर हमारा जो करेक्टर है जो हमने रीड किया है वो इनमें से कुछ भी हुआ तो हमारा काउंटिंग 1 बढ़ जाना चाहिए। तो अभी मैंने, अब देखिए एस में पूरा स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर हमें चाहिए, तो वी कैन फॉर्म ए लूप की फॉर सी इन एस, फॉर सी इन एस। इस लूप का मतलब है, इस लूप का मतलब है कि एस जो स्ट्रिंग है उसमें से एक एक कैरेक्टर लीजिए और सी में डालते रहिए। तो इसमें जो सी की वैल्यू मिलेंगी हमें वो एस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं एक एक करके वो सी में हमें आते जाएंगे। इसके बाद अब सी में हमारे पास कैरेक्टर आ गया, तो हमें ये चेक करना है कि ये कैरेक्टर लिस्ट एल के जो कंटेंट है उनमें से कोई तो नहीं है। तो हमने ये कहा इफ सी इन एल, इफ सी इन एल, कि अगर सी जो हमारे पास कैरेक्टर आया है एस में से निकल के वो एल में है, एल यानी इस लिस्ट में है, देन वी विल इंक्रीज द काउंट बाई 1। अब ये जो लूप है ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता रहेगा तब तक जब तक कि एस स्ट्रिंग में से सारे कैरेक्टर्स को रीड करके चेक नहीं कर लेता, तब तक ये लूप आपका फॉर्मेशन चलता रहेगा। एंड एज सून एज दिस लूप विल फिनिश, देन इन काउंट वी विल हैव द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स which are vowel. So we are going to print it. Print there are
there are count vowels in the file, and finally we will close this file. So now let us check the result of this program, and I am just running it. Here you can see in the output section it is showing us that there are 23 vowels in the file. 23 vowels. तो अभी यू कैन थिंक कि 23 वॉबल्स इसमें इस फाइल में हमारे हैं या नहीं है, ये देखते हैं. तो लुक एट हियर, देखिए THI फर्स्ट वॉबल, फिर दूसरा, फिर दिस A इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. You can check that in this text file there are 23 characters which are actually vowel. So it means our program is giving us the right result here. Are you getting this code or not? If any doubt you have regarding any line written in this code, then you may please ask. Anybody? Do you have any problem understanding? क्या बेटा? इसमें C क्या है? देखो ये जो C हमने लिया है ना, this C वेरिएबल यू आर टॉकिंग अबाउट, ये हमने लिया है कि S स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर हमें आएगा जो हम लूप फॉर्म किए हैं फॉर C in S. तो आपने जैसे वो किया था ना फॉर A in रेंज 1 to 5, आपने ये लूप इस तरह से यूज कर रखा है ना. तो फॉर A इन रेंज 1 to 5 का मतलब क्या होता है कि रेंज 1 से 5 के बीच के जो वैल्यूज हैं वो एक एक करके A में आते जाते हैं. तो हियर व्हाट इट विल ऑब्जर्व कि फॉर C इन S का मतलब है कि S में से जो स्ट्रिंग हमने रीड की है S में, उसमें से एक एक कैरेक्टर C में आता जाए. तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक S के अंदर से सारे कैरेक्टर्स एक एक करके रीड नहीं हो जाते C में. तो हर बार वो C में एक कैरेक्टर डाल देगा और इफ वाला स्टेटमेंट ये चेक करेगा कि वो C जो हमारे पास आया है S में से, उसकी वैल्यू इस लिस्ट के जो कंटेंट है L की. तो दिस स्टेटमेंट इफ C in L, दिस स्टेटमेंट विल एंश्योर कि अगर C की वैल्यू जो हमारी आई है लूप में, उसकी वैल्यू इस लिस्ट के जो कंटेंट है A, E, I, O, U इनमें से कुछ भी है, then this count plus equals to 1 is going to execute, which will simply increase the value of count by 1. समझ में आई बात? नहीं आई अभी आपके? यहाँ जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं आपको. जैसे मान लीजिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये C की वैल्यू क्या ले रहा है ना. मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट C और कॉमा लगा के एंड इक्वल्स टू स्पेस. अभी हम देख लेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या कर रहा है. ठीक है, C की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ये हम इसमें चेक करते हैं.
अब आप देख रहे हैं कि सी की जो वैल्यू प्रिंट हुई ये क्या हुई, दिस इज अ टेस्ट फाइल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आ गई कि नहीं आई? तो इसका मतलब सी में हर बार एक करेक्टर रीड हुआ। जैसे सबसे पहले सी की वैल्यू क्या आएगी, टी, तो ये चेक करेगा कि सी की वैल्यू इस लिस्ट के कंटेंट यानी ए आई ओ यू में से तो कोई नहीं है, अगर है तो इट विल इंक्रीज द काउंटर बाई 1। तो in this way you can understand this point. Is this clear now? Yes, sir. Okay. तो देखिए एक तो तरीका ये है कि मैंने ये लिख लिया if C in L। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि मैं ऐसे लिख दूं कि if C equals to A, है ना, और C equals to E, और A और C equals to I, और C equals to O, और C equals to U। मान लो ये भी अगर मैं लिख दूं कि if C equals to A और C equals to E I O U, तो काउंटर एक इंक्रीज हो जाए। तो ये दिस इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क, है ना। देखो अभी इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है। अभी भी वही आ रहा है ना रिजल्ट, यू कैन सी द रिजल्ट हियर इन दिस आउटपुट विंडो, देयर आर 23 वॉवेल्स इन द फाइल। तो अभी इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने की बजाय it is more feasible to write only the if C in L. This will make your code shorter. So I will keep this written here only, if C in L. Correct? तो अभी हमने जो देखा वो ये देखा कि हम फाइल से रीड कर रहे हैं, और अभी नाउ टुडे वी विल आल्सो डिस्कस हाउ वी कैन राइट इनटू अ फाइल। अभी तो हमने टेस्ट वाली जो फाइल थी test2.txt, वो पहले से हमने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर ली, उसमें कुछ लिख दिया। हम ये चाहते हैं कि हम खुद से एक फाइल बनाएं प्रोग्राम के थ्रू, और वो फाइल हमारे डिस्क पे जाके स्टोर हो जाए। तो लेट अस सी कि व्हाट फंक्शंस वी हैव फॉर writing to a text file. So because every software needs to write some data permanently into a file, we must know how to write into a file. In the previous program, we just read from a file and processed the file as per our requirement. But here, what functions we have to write data or text into a text file in Python? So see, like read, here we have a function with the name write. So as you can see in this slide, this function is used to write or print the string into a text file. The syntax you can see here, this syntax is any file dot write, and inside brackets you can see a string has been written. So you can see a \n is given here. So formatting purposes, since we all know that in a text file each line is terminated by a end of line character, which is \n or new line character. So while writing data into a text file, we should write \n to differentiate the lines. One more function that we have for writing into files
is write lines. Similarly to read lines, there is write lines. So here you can see कि in write lines bracket में we have to give a list, and the list contains the lines to be written into the file. So let us see by an example. ठीक है, so I am just coming to this screen, PyCharm, and going to open a new file here. A new file I am going to open here, Python write file. ठीक. Now what I am going to do here in write file कि मैं एक फाइल यहाँ पे नई बनाऊंगा जिसका नाम होगा test3, और इसके लिए मैं फाइल को ओपन कर रहा हूं और इसको मैं ई ड्राइव में ही बनाऊंगा. ठीक है, ई ड्राइव में test3.txt, and since I am opening this file for writing purposes, I will use this W for write. तो अभी मैं क्या करना चाहता हूं कि I will ask the user to enter names of 5 students, और उन 5 स्टूडेंट्स के नेम को मैं स्टोर कर दूंगा इस फाइल के अंदर. तो मैंने ये कहा फॉर I in range 1.6, for I in range 1 to 6, as equals to input, enter name of the student. It will be 1,6. 1,6. Enter name of the student. Whatever we will enter from here will get stored in S, and now I am just ff.write. तो मैंने इसमें S को राइट कर दिया और साथ में ही बस इस S को ही राइट कर दिया मैंने. ठीक है, so this loop is going to execute 5 times, and it will ask 5 times the content, the name of the student. Each time I will input one name, and this function this will write into the file. So let us execute this and see what happens. So I am just executing. अरे यार, वो मैंने सही लिखा था, यहाँ पे कॉलन लगाना भूल गया. Okay, so see here in the output window you can see it is asking for a name. So I just entered Harsh Verma. Okay, entered. Second name it is asking Deepak Atri. Third name it asking Mrinal Varshne. Fourth name say Love. Love का आगे क्या नाम है? अग्रवाल. हेलो, शर्मा. लव शर्मा. और इनके अलावा भी एनीबडी?
और सपोज अभिमन्यु तो क्लास में सपोज आई एम जस्ट टाइपिंग माय नेम हियर नवीन वास। तो ये आपका 5 टाइम्स हो गया, 5 नेम्स द प्रोग्राम आस्क्ड फ्रॉम मी, और ये 5वां नेम आपके इस फाइल में जो test3.txt के नाम से है इसमें आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इस test3.txt की लोकेशन पे जाके देखते हैं ई ड्राइव में कि ये फाइल हमारी क्रिएट हुई है या नहीं। तो अभी हम इसको चेक कर रहे हैं। ये तो हमारी फाइल थी ये वाली, test3 वाली फाइल को, ये test3 यू कैन सी हियर दिस test3 फाइल पहले नहीं थी, अभी क्रिएट हुई है। और इसके कंटेंट्स को भी देख लेते हैं क्या है इसमें। तो आप देखिए इसमें हर्ष वर्मा, दीपक अत्री, मृणाल वार्ष्णेय, लव शर्मा, नवीन वार्ष्णेय। तो यहाँ आपने क्या देखा कि इसने अलग अलग लाइन पे नहीं किया, क्योंकि राइट फंक्शन \n को नहीं ऐड करता, ठीक है ना। तो अभी ये एक ही लाइन में हमारे में दिख रहे हैं। तो व्हाट वी कैन डू फॉर रिजॉल्विंग दिस, तो मान लीजिए अभी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, राइट s और कॉमा के साथ \n यहाँ लगा देता हूँ। अब देखिए अब होगा क्या, ये देखते हैं कि दोबारा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। सो यू कैन सी इट इज आस्किंग सम नेम्स। आई एम गिविंग लव, sorry, here is a problem in this line. We want to add some string in s, sorry, s comma नहीं आएगा, s plus we execute love, Naveen, you can see Harsh, Deepak and Mrinal, करेक्ट। अभी हम देखते हैं कि क्या हुआ। ये test3 आपकी फाइल है। अब देखो ये test3 वाली जो फाइल है, लेकिन इसमें मैं क्या देख रहा हूं कि पहले मैंने जो एंटर किए थे नेम, वो नेम यहां से हट गए हैं, अब ये नए आ गए। तो इसका मतलब ये है whenever you write something in the mode W मोड में अगर फाइल आपने ओपन की, तो फाइल में अगर पहले से कुछ लिखा हुआ है, तो आप जब उसमें कुछ और नया लिखेंगे तो वो पहले वाला यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा करना है कि इसके बाद और दूसरा ऐड करना है मान लो कुछ, तो हमें फिर फाइल को W मोड में ओपन ना करके हमें ओपन करना चाहिए A मोड में। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 2 नाम मैं सपोज और ऐड करना चाहता हूँ, मैं A मोड में इसको खोलूंगा, W में नहीं। और यहाँ पे मैं केवल 2 नाम, क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट। नाउ आई एम जस्ट executing this. So 2 more names I will add, say Kausal and Hari. Suppose ये 2 नाम और मैंने ऐड कर दिए। Now let us check what is the status of our test file. You can see Kausal and Hari has been added at the last. और अगर ये मैं W में ही करता ना, तो ये पहले वाले कंटेंट्स को 5 और नाम को हटा देता और केवल कौशल और हरी रह जाता है ना।
I hope this thing is clear to all of you. W और A मोड में जो अंतर है वो समझ में आ गया आपके, है ना? Yes, sir. Okay. In the next class we will discuss binary files. Okay. Have a great day because the time is running out. I have to complete this session. Okay. Bye bye. Have a very nice day. Thank you all.